नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से हमारा गुरु संगत का डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी की रीडिंग होएगी। आज 6th सेशन है। आज की रीडिंग तनुज कपूर आंटी जी करेंगी। इनफैक्ट ये जो सत्संग है ये डॉक्टर अनीता आंटी का लिखा हुआ सत्संग है जो कि अभी गुरु जी के चरणों में है। और ऑन बिहाफ ऑफ गुरु संगत तनुज आंटी वाज रिक्वेस्टेड टू रीड इट आउट। नाउ वी विल रिक्वेस्ट तनुज आंटी टू इनिशिएट। आज की को होस्टिंग दीपिका आंटी करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपिका आंटी। तनुज आंटी, जय गुरु जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और सुनने वाली सभी संगत को भी प्यार भरी नमस्ते। अंकल जी, आई हैव टर्न्ड ऑन माय वीडियो बट आई डोंट नो वेदर यू कैन We can view. whether you can see me. We can see. Okay uncle, because I'm sharing my this is my sister's laptop. So शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना ये सेवा देने के लिए। एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए और डॉक्टर अनीता की याद में जो भी ब्लेसिंग्स महाराज ने डॉक्टर अनीता और उनके परिवार पर की हैं, आई विल बी शेयरिंग with all of you. So thank you Suresh uncle ji for giving me this seva today, and thinking of Anita auntie, Dr. Anita and her family and our Guruji Maharaj, I will start today's reading. Today's chapter is like a mother, he holds us close to his bosom. बहुत ही सुंदर है और such a loving theme, such a emotional theme. So I will start the reading now. So much has happened since my family and I had Guruji's first darshan. Before then, my life was in a mess. My father was in a coma and had been hospitalized for a month and a half. Being a doctor, I was well aware of all the complications that could arise and hence could not bring myself to leave his bedside. Then came a day when my frustration rose and I could take it no more. Everything seemed to be going wrong. Finances were at an all-time low, and every passing minute trying to keep my father alive was an ordeal. My sister and brothers were also trying their best. Nothing seemed to work. I was feeling dejected. Fighting back tears, I wondered why God didn't come to my family and rescue us. I had always believed in him, loved him, and trusted him with all my heart. So why wasn't he responding? I needed to meet someone with whom I could share all my sorrows without having to utter a word. Someone who would watch over me, someone who would give me strength to face reality and bail me out whenever I was in trouble. I really needed him. कितना सुंदर है संगत जी, और हम में से कितनी बार ये फीलिंग हम में आई है और ऐसी ही फीलिंग लेके हम लोग गुरुजी के दरबार में गए हैं। मेरे को जो याद आता है कि ऐसी फीलिंग के साथ तो मैं गुरुजी के दरबार में नहीं गई थी, बट मैं आपसे 1984 की बात करना चाहती हूँ। 1984 में हम जलंधर में रहते थे। गुरुजी के घर से हमारा घर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था, 5 मिनट से भी शायद कम था। बट तब मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था, पर जो हमारे महाशिव हैं, महाशिव की मैं बहुत बहुत उनसे प्यार करती थी, हमारा पूरा परिवार। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती थी वेयर all doors were closed and there was no one else who could help me but my Shankar Baba, my Shivji Maharaj. So I prayed to him. I would pray to him for
months, there was a situation where my second child, that's my son, he had a medical complication which did not have a cure. And to think about that, how is the life going to be, ours and his, was very, very traumatic. And I used to always think about my Shivji Maharaj and cry in my heart. I used to cry a lot then. You know, I was so much younger in 1984. And then एक रात शिवजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए, बहुत सुंदर दर्शन दिए, इतने विशाल रूप के दर्शन दिए. मैं इसको छोटे में बताऊंगी, बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ. और मैंने क्या देखती हूँ, घर के दरवाजे के पीछे, घर के दरवाजा है, वहां नॉक हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि बाहर कोई है. ये मेरा बचपन का घर, जहां मेरी दादी जी का घर था. और मैं दरवाजा जब खोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने खोला तो मेरे सामने कौन खड़ा है, विशाल रूप में शिवजी महाराज, इतने विशाल कि मुझे अपना सर ऊपर करके तब मैंने देखा. सो ही वाज, आई मीन, far higher than the door, much higher and so powerful that even when I think of it now, the power I can feel, the energy, his energy that was exuding there, I can feel. और मुझे क्या कहते हैं, जब मैंने उनकी तरफ देखा, उनके हाथ में त्रिशूल था, कमंडल था, और मुझे देख के कहते हैं, तो क्यों रोती है, मैं सब ठीक कर दूंगा. तब ये जो दर्शन थे, आई डिड नॉट नो ये परमात्मा के दर्शन है. फॉर मी एट दैट टाइम इट वाज अ ड्रीम, बट टुडे आई नो व्हाट इट मीन्स. तो जब हमारे हृदय की पुकार जाती है परमात्मा तक, जब हमारा बर्तन जो है ग्रीफ से भर जाता है, that there is no one else to turn to. Even the doctors say, I'm sorry, we cannot help you anymore. Who else comes to your rescue? And उन्होंने सब ठीक कर दिया in his own way. My son did not get okay, but he lived for 4 years. 4 साल वो रहे, वो भी अपने कर्म काट रहे थे, और शायद हमारे भी कुछ कर्म थे जो कट रहे थे, पर महाराज ने कितने छोटे में करके हमसे वो कर्म कटवा दिए, और कितनी मेहर की. And soon after, he blessed me with another beautiful baby boy. And he blessed us with a beautiful life. So Guruji कहते हैं ना, तू रोंदी क्यों है, मैं सब ठीक कर देंगा. So here I'm reminded of that. Deepika auntie, would you like to say something here? Deepika auntie ji, are you there? जय गुरु जी, जय गुरु जी. आपने तो ना एग्जैक्टली मेरे दिल की बात बोली है. और उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर अमिता एक कोई जरिया था. तो गुरु जी ने उनका नाम ना अमिता गुरु जी ने दिया था. वैसे वो डॉक्टर अमिता, डॉक्टर अमिता, उनको लाइफ दी थी 7 साल. तो उन्होंने खुद मेरे को सत्संग सुनाया था, 7 साल दिया था, क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे. 2000 के अंदर उनको 7 साल दिए थे और 2008 में. तो उनका नाम अनीता किया था, तभी ये डॉक्टर अनीता के नाम से सत्संग है इस बुक के अंदर. तो मुझे नहीं पता था, जब मैंने सत्संग सुना ना तो मैंने उनके दूसरे को सहारा करके सुनाया. तो मैंने कहा माय गॉड, थैंक यू सुरेश अंकल, क्योंकि मैं कल ही उनके बारे में पूछती थी और मैंने कही कि यार अगर देखो सत्संग मिला तो डॉक्टर अनीता का शायद उन्हीं को जान. और किसी को मैं उस वक्त गुरु जी ने बिल्कुल मना कर दिया था, कलाकरण भी लोग नहीं है. तो हम लोग बहुत सिक थे. एंड ये सब तो मेरे साथ भी यही हुआ था. मेरे डैड वो मेडिकेटर, और तब मैंने उनको सेम वर्ड डॉक्टर अमिता ने लिखे हुए कौन मैं किससे बात करूँ, कौन है मेरा अपना, वो मैं अपना फ्रेंड, अपना फादर समझूँ. तब गुरु जी के Similarly, going to same चीज हुई है. I was thank सुरेश अंकल जी ने, उन्होंने मेरे से बड़े आज मेरे को ये बोला है, तो मैं उनको बहुत मना करती हूँ. लेकिन of course this is not a coincidence. आप सबको और जो सुनने वाले, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये गुरु जी ने करा है. और मेरे को ये नरेशन अगर दिया है तो डॉक्टर अनीता का ही,
तो डॉक्टर ने कहा कि को मैं रूबरू जानती हूँ, 1 साल के साथ मैंने इतना अच्छा टाइम निकाला है, क्योंकि मेरी हर सत्र के अंदर शुक्राना पहले उनका जिन्होंने रहा था। तो ये है ओवर द Jai Guruji, I will continue now. One night I came home but could not sleep. Around 3 a.m., my brother Shiv rushed into the room and gave us some prasad. Shiv told us he had been to Guruji's and narrated some of the miracles he had heard over there. I slept well that night. Next day, my husband and I decided to go for Guruji's darshan. Little did we know that nobody could reach him till he so ordains. I had imagined that I would be meeting a long bearded Babaji sitting under a tree, but I was taken by surprise. Here was a person who had such an intense aura, who had the innocence of a child when he smiled, whose eyes seemed to penetrate through your very being, touching you. I was overwhelmed after meeting him. His fragrance was intense, as if a lot of rose essence had been sprayed around. He made us sit next to him and somehow made us feel secure. For some strange reason, I felt the tension drain out of me. He also assured me all would be well. So, संगत जी, यहाँ पर जैसा मैं पढ़ रही हूँ गुरुजी महाराज का स्वरूप और वो जो आई कैन सी द विजन ऑफ छोटे मंदिर, गुरुजी अपने आसन पे बैठे होते थे एंड जब हम जाते थे और बाकी संगत जैसे जाती थी, गुरुजी वुड गिव दैट such a beautiful childlike smile, the childlike innocence, which is so divine and pure. So all that has coming to me now, and yes, his fragrance जब हम आज सोचते हैं, it is the fragrance of divinity. परमात्मा बैठे थे वहां. Deepika aunty, do you want to say anything here? Deepika aunty ji? Okay, Sangat ji, I will continue. The very next day, I took my twin boys, who were about 4 years old then, to see Guruji's blessings. On the way, I asked them to do pranam to Guruji. My eldest son Daksh politely declined, saying that he only touched Shivji's feet. As I walked up to Guruji to pay my respects, Daksh just stood there while Dhruv bowed. I felt very bad as Daksh had not touched his feet till then. Suddenly, I found that Daksh had walked back to Guruji and was touching his feet. Later, I teasingly asked the little fellow why he had done so. He innocently replied that he had touched Shivji's feet. Thus, unnoticed by everybody, Guruji had given his darshan to Daksh. Gradually, things started getting better, and help for my father's treatment came from all quarters. With Guruji's blessings, my husband too found his dream job. कितना सुंदर है कि जब गुरुजी चाहते हैं उस समय अपने भक्तों को, अपनी संगत को दर्शन देते हैं. किस रूप में वो दर्शन देते हैं वो भी गुरुजी को पता है. जिस रूप में संगत परमात्मा को मानती है, परमात्मा का ध्यान करती है, मोस्टली गुरुजी वुड गिव दर्शन इन दैट स्वरूप. और देखिए कितने छोटे बच्चे को उन्होंने शिवजी के दर्शन दिए, बिकॉज ही ओनली सेड ही वुड बाउ डाउन टू शिवजी. तो कैसे इतने प्यार से महाराज अपना बना लेते हैं संगत को. और आगे जैसे आंटी के सत्संग में लिखा है दैट बिफोर ऑल दिस, you know, her husband was looking for a good job, but all this while उनको नहीं मिला. But अब गुरुजी की blessings के बाद, she says, my husband too found his dream job. So timing is Guruji's. और मुझे भी याद आता है, this is going back in the very early 2000s. तब I had moved to Delhi, and that is the time I had decided to
take up a job here. And Sangat ji, मैंने काफी जगह apply किया to the jobs that I wanted to do. And when I would go for the interview, जो बाकी आए हुए थे participants, I thought, and when I interacted with them, मुझे लगा that I'm better than them, that I definitely would get the job here. But Sangat ji, I never got the job. I could not understand why. बहुत कम, I mean, काफी जगह मैं interview के लिए गई, but I did not get the jobs. And I was wondering why that was happening. Why people who I thought were not as qualified or not as capable were selected. But my answers came after some time. In a couple of years, Guruji blessed me with the job that today, when I look back, was my dream job. It was something that was it suited my personality, my skills the best. So he knows best. क्या देना है, कब देना है, and that was the job I got. And I worked with them for 17 years. And I retired from that job. I took a voluntary retirement. We had such a good relationship there and so much respect I got from that organization that they didn't want me to leave. But now, when I took retirement, I wanted to devote more time to the family and to some of the things that I wanted to do on a personal level. So about this dream job, it is only Guruji. Unko pata hai kab kya dena hai, aur hamesha he will choose the best for us. So we must never forget that. Deepika auntie, would you like to say anything here? अरुण अमिता दी के हस्बैंड अरुण अंकल को जो ड्रीम जॉब मिला था ना, बोस की कंपनी के अंदर उनको क्या कहते हैं, उनका जॉब वहां मिला था और ग्रेजुअली गुरुजी ने बोस की कंपनी का उनको सीईओ बना दिया था. जिस दिन 2007 के बाद वो सीईओ रहे हैं बोस स्पीकर्स की कंपनी के ना आंटी, वहां का उनको ड्रीम जॉब, उनका शुरू से मन था कि उनको वहां उनको अप्लाई कर रखा था उन्होंने बहुत टाइम से, लेकिन उनको बाद में मिला था. धीरे धीरे ग्रेजुअली वहां के सीईओ बने. 2 बच्चे थे उनके, ट्विंस थे, दक्ष और ध्रुव, बहुत छोटे छोटे थे. एंड अमिता दी का बताऊंगी, उनको लाइफ गुरुजी ने दी थी ना, लाइफ देने के बाद घुमाने के लिए भेजा, क्योंकि गुरुजी को पता था कि उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट है. और उसके बाद ना उन्होंने कहा था कि अब ना अपनी डॉक्टरी मत कर, सेवा ते आ जा. तो 2006 and 7 दोनों साल उन्होंने डॉक्टरी नहीं करी, गुरुजी की सेवा करी थी उन्होंने 24/7. रोज बुलाते थे गुरुजी, रोज. मैं तो इतना जानती हूँ, रोज वो और बड़े माली भैया, राम अवतार माली भैया एम्पायर स्टेट जाते थे और बड़े मंदिर जाते थे. लास्ट के डेज में जब गुरुजी ने चूल्हा छोड़ा है, तब तक अमिता दी, एंड ऑफ कोर्स अमिता दी वाज देयर जब गुरुजी ने मां समाधि दी थी. शी वाज इन द हॉस्पिटल एज वेल. जय गुरु. Thank you, Deepika auntie. The best part about these interactions are that ये जो छोटी छोटी बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें, ये अब सामने आती हैं जब हम personal interaction करते हैं. So these things are shared and they must be giving solace to so many sangat who are listening. और गुरुजी बहुत को कहते थे, बहुत को नहीं, कुछ को उन्होंने जरूर कहा था कि 2 रोटी खानी है ना, मैं दे देंगा, मेरे को ला जाओ. So ultimately in life, what is important? And Guruji will take care of everything. It's such a beautiful message that comes through here. चलो आगे पढ़ते हैं. Next it is, nothing will happen to your child. Then in the year 2000, Daksh developed loss of appetite accompanied with fever, weight loss and enlarged lymph nodes. The doctor treated him with antibiotics, but nothing worked. It was a Monday when we took him to Sir Ganga Ram Hospital to get him examined by a senior specialist. I feared the worst. Daksh's symptoms were pointing towards a cancer process. I clutched at Guruji's picture while walking into the doctor's cabin. I was praying for my son's good health and repeatedly asking Guruji for his blessings. I knew that
it was in his power to correct the ailment in a split second. The cabin filled with his fragrance. I had heard that if you remember Guruji truly, he always comes to your rescue. The rosy scent signified his presence. It is so true. जैसे पहले आंटी ने कहा कि जब वो डॉक्टर के कैबिन में जा रहे थे, so she was clutching at Guruji's स्वरूप. All of us do that. कोई भी क्राइसिस सिचुएशन हो, अंदर दिल में गुरुजी का ध्यान हो रहा है और we are holding on to either the pendant we have or a swaroop or the bracelet and asking for his grace. All of us have done that. And जब गुरुजी महाराज हमें कैसे बताते, हमें कैसे शांत करते हैं हमारी एंजाइटी को, so many times उनकी फ्रेग्रेंस आ जाती. That is the way he shows. But it doesn't mean कि अगर हमें फ्रेग्रेंस नहीं आई तो वो हमारे साथ नहीं है, और या वो हमें सुन नहीं रहे, या वो हमारा he is not taking care of everything. He is. So many times संगत feels कि हमें तो फ्रेग्रेंस नहीं आई, पता नहीं गुरुजी हमारे साथ हैं कि नहीं. Guruji has his own ways of telling everybody, of making everybody feel that he is with us. But we must take it for a given. 100% वो हमारे साथ हैं, especially जब हमें उनकी जरूरत होती है, जब क्राइसिस होता है. So there is whether fragrance or not, he is always there. But fragrance अगर आ जाए तो हमारा दिल अंदर से खिल जाता है, and we know कि गुरुजी आ गए, है ना. So there are so many ways. And मेरे आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड कि जब आपका दिल चाहता है, स्पेशली आई विल टॉक अबाउट अ फ्यू मेडिकल सिचुएशंस दैट देयर वाज अ सिचुएशन वेयर आई नीडेड आई सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी. डॉक्टर्स ने मुझे बोला, एंड इट केम सडनली. आई हैड नो प्रॉब्लम विद माई आईज, ओनली जैसे विद एज आप स्पेक्स पहनते हैं, इट वॉज लाइक दैट. बट डॉक्टर सेड यू शुड गेट इट डन. एंड आई वॉज नर्वस. मैं छोटे में बताऊंगी, आई वॉज वेरी नर्वस. एंड आई सेड, गुरुजी, I know you are with me. He had given me many signs to show me that he is with me and that he has taken this decision. But despite that, मुझे अंदर से नर्वसनेस थी. तो गुरुजी ने एक बार, मैं जैसे उसी दिन, एक दिन पहले जब मैं वॉक करके बेंच पे बैठी थी, तो गुरुजी, मैंने जब आंख गुरुजी को ध्यान कर रही थी और गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी, आई नो यू आर विद मी, सो आप मुझे शांत करिए अंदर से. एंड व्हेन आई ओपन माय आईज, मैंने देखा जो नीचे जमीन पर बड़ा सुंदर पत्तों से इतना बड़ा ओम बना हुआ था. तो गुरुजी ने मुझे कहा, मैं तेरे नाल आ. उसके बाद भी दैट नाइट बिफोर आई स्लेप्ट, आई सेड, गुरुजी, यू आर विद मी, बट देयर इज स्टिल सम एंजाइटी. प्लीज बी विद मी एंड हेल्प मी गेट रिड ऑफ दिस एंजाइटी. तो गुरुजी ने उस दिन बड़े सुंदर ड्रीम दर्शन दिए, इतने सुंदर दर्शन दिए that Sangatji, Guruji came himself. He showed me the entire process that happened the next day. जो पूरी सर्जरी से पहले हुआ, सर्जरी के कमरे में हुआ, he showed me completely and he was there himself. So in my dream, when I saw all that, मैं गुरुजी ਨੂੰ अपने ड्रीम च कह रही हां, गुरुजी ਮੈਨੂੰ पता ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ. And so beautiful it was. When I got up, I realized that he had blessed me. But उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि अगले दिन, मतलब कुछ घंटों बाद, अगले दिन मतलब ये अर्ली मॉर्निंग का ड्रीम था. सो आप समझ लीजिए अबाउट 4-5 घंटे बाद जब मेरी सर्जरी हुई, फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टिल द एंड, जो गुरुजी ने दिखाया था, one after the other, exactly that happened. And Guruji was there walking in front of me wearing that gown and saying, come, don't worry. And he was speaking in English. Don't worry, let's go, don't worry. और मुझे ले गए ओटी में, और वहां वो खड़े थे जब वो सर्जरी हो रही थी. सो जो रात को दिखाया था संगत जी, वो नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ था आफ्टर सम आवर्स. सो हृदय की पुकार सुनते हैं, और जब उनको लगता है मेरा भक्त ज्यादा घबरा रहा है, वो आ जाते हैं, दौड़े चले आते हैं. किस तरह शुक्राना करें. Such a beautiful experience. I have so many more. एक और छोटा सा शेयर करती हूँ. एक, this is after both, even the
कैटरैक्ट इज आफ्टर महासमाधि, और एक और है विच इज अबाउट मे बी 5 years ago. पहली बार इन लाइफ मुझे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ, बहुत सिवियर था, और मेडिकेशन मुझे मिली, और एक दिन इतनी जबरदस्त दर्द मुझे उठ रही थी इन माय लोअर एब्डोमेन दैट आई जस्ट वाज, मेरे सहन करना मुश्किल था. मैं बेड पे लेटी और मैं अपने पेट के बल लेटी, अपना मैंने पकड़ा पेट, एंड मैंने गुरुजी को अंदर से याद किया. मैंने कहा गुरुजी तुसी आ जाओ, प्लीज आ जाओ. संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, इतनी जबरदस्त मरोड़ पड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्पैजम आया, पेट में मरोड़ पड़ी, एंड आई rushed to the washroom, and soon after that it was all gone. आ गई, उसी वक्त आ गए. he helped me, जितना सफर कराना था करा दिया, छोटे में कटवा दिया. सो बहुत बहुत सत्संग है गुरुजी के, where he takes care of your health. Taking care of Sangat's health is a priority with Guruji. दीपिका आंटी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? I know about you. I know you have such beautiful satsangs and Guruji's blessings about your health, your life. it's all अमिता दी. मैं ना जब भी गुरुजी को थैंक यू कहती हूँ ना, अमिता दी को थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि उनके जितना उनका साथ मेरे को मिला था ना. आई नो 2008 के अंदर जब भी उनकी डेथ हुई है ना, लिवर सर्रोसिस से उनकी डेथ हुई थी. गुरुजी 2007 में उन्होंने छोड़ा 2008 में अक्टूबर में, और वो इतना तड़प रही थी कि गुरुजी ने अपने चरण दिए हुए थे, तो गुरुजी की जुतियां ना चेस्ट पे लगा के ना शी टू क्राई, गुरुजी बस करो, गुरुजी बस करो. और ना इडली उनको बहुत अच्छी लगती थी, इडली खाती थी उनके दर्द उठ जाता था, इतना ज्यादा उनका मेजर हो गया था बिकॉज ओवरवेट थी. एंड आप मानोगे, जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई थी ना, गुरुजी ने मेरे को और उनको ना मोटी कह के बुलाया था. आई टुक इट वेरी सीरियसली एंड शी डिड नॉट. मैंने उनको बहुत कहा था कि दीदी थोड़ा वेट लूज कर लो, आप बहुत ज्यादा वेट हो रहा है, आप बाद में प्रॉब्लम होगी. और मैंने तो दिल पे ले लिया था, आपको सच्ची बता रही हूँ कि हाउ डज ही कॉल मी मोटी. और उसके बाद मैंने वेट लूज है. तो मेरे को ना संगत को सबको यही बताना है कि गुरु ना किसी के थ्रू ना आपको कुछ सिखाता है, कोई सत्संग के थ्रू आपको समझाता है. जैसे हम लोग इतने मिरेकल्स की बात कर रहे हैं, मिरेकल्स कब हो रहे हैं? जब हमारा विश्वास है. आपका विश्वास इतना अटूट है तो भगवान आएगा ही. तो हम लोग विश्वास नहीं कर रहे, दूसरे की देखा देखी सोच रहे उसके साथ हुआ है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप उनको समझ नहीं रहे हो. वो इतनी बड़ी पावर है ना, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कैसे. लाइफ लाने वाले वही है, लाइफ निकालने वाले वही है, मुक्ति मोक्ष सब देने वाले वही है, जो भगवान ही है. तो ये है, और कुछ नहीं. आप कंटिन्यू कीजिए सत्संग. ओके, हाँ जी, आगे पढ़ती हूँ. The doctor examined Daksh and was very upset and looked disappointingly at me. He had found both the spleen and liver enlarged, clearly pointing towards malignancy. The doctor made me feel the enlarged organs and asked for an ultrasound of the abdomen immediately to assess the extent of involvement. I was near to tears, fervently praying to Guruji to take care of this problem. I had heard of so many miracles and was convinced that he could cure my son. Throughout the 40-minute drive to the radiologist, Guruji's fragrance reached out to us reassuringly. While the ultrasound was being conducted, my son and I could feel his presence, and his fragrance lingered around us. With Guruji's blessings, the ultrasound was normal. The entire diagnosis changed. Even the liver and spleen were found to be normal in size. Guruji had listened to our prayers and given a new lease of life to our child. So many of us have experienced this. It is really, really beautiful. और जैसे कि आपने दीपिका आंटी ने कहा, गुरुजी तो हैं, सबके लिए हैं. और गुरुजी खुद कहते थे, मेरी तो एनर्जी इज फ्लोइंग. कौन कितना तैयार है लेने के लिए, कौन टोटली मेरे में इमर्स्ड है. And like I'm also reminded of Commander Uncle's book, which the title is
blessings, no, ready for the sunny blessings, ready for the divine. कि are we ready? क्या हम तैयार हैं वो डिवाइन ब्लेसिंग्स लेने के लिए? और गुरु महाराज के इन हिज दरबार एंड फॉर हिम क्या तैयारी करनी है हमने? कोई तैयारी नहीं करनी. जस्ट प्योर लव, 100% faith in him, that's all. एंड द फेथ, यकीन कि वो है, वो देख रहे हैं, जो मेरी लाइफ में हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है. सो व्हेन दैट इज देयर, देन वी विल एक्सपीरियंस इट. क्योंकि जब हमारा जो अंदर से सोल है, हमारा जो हृदय है, वो साफ है और वहां सिर्फ महाराज की मूरत है, महाराज का प्यार है, महाराज के लिए प्यार है, तो हम एक्सपीरियंस करेंगे. वी विल बी एबल टू फील दैट, वी विल बी एबल टू हियर हिज वॉइस and get the fragrance. All this will happen, जैसे गीतिपिका आंटी ने कहा है, when we are there totally with him and we have complete faith in him. So these miracles will happen. They do happen. All of us have experienced. सभी नई संगत में भी जो क्यों जुड़े हैं? क्योंकि महाराज ने कुछ दिखाया है, कुछ कल्याण किया है. So लगे रहिए, keep the faith and he will take care of everything in your life. आगे चलते हैं. दीपिका आंटी, डू यू विश टू से एनीथिंग हियर? आगे चलो, अभी आगे चलो, उनके हस्बैंड का भी आएगा अभी सत्संग एक ठीक साथ है, से. हाँ जी. ओके, आई विल गो है. In the evening, we reached Guruji's place, hoping to talk to him about the day's events. We were pleasantly surprised as we entered the hall, for he called out with a mischievous smile on his lips. So, what was the diagnosis? Doctor ने की क्या? I was overwhelmed. He already knew what had happened during the day and yet had given us an opportunity to satisfy our curiosity. I told him that the doctors were suspecting cancer. He kept quiet. I was near to tears when he said, "Don't worry, nothing will happen to your child." I inquired if I needed to conduct the various tests that were due. He answered that as I was a doctor, I would not understand and I could go ahead as I wished to. Somewhere my logical mind would not let things rest with him, and so I got a gamut of investigations conducted on my son. Believe it or not, each one came out normal. Finally, a biopsy was conducted on the lymph nodes, which by now had started joining, or also known as VBGT matting. The lymph node that was removed showed changes to the naked eye. I was confused. How could this be? Guruji had said that all would be fine, but then why this? All kinds of thoughts came to my mind. I was desperate. That evening, I was asked to come to his Sangat once a week only. I wondered why he had done this. Next week, the biopsy results came and they were normal. The surgeon could not believe it. He said it was a miracle. We, of course, knew who had performed it. Guruji had blessed my son, so this had to be. कितना सुंदर है कि शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरुजी. कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आती हैं. But here again, what I will repeat by saying, keep the faith. When the results came initially, अनीता आंटी को या अमिता आंटी को, जैसे आप बता रही हैं दीपिका आंटी, she felt कि गुरुजी ने तो ब्लेस किया था, पर क्यों ऐसा आया है? But soon, within a week, the biopsy results changed. So गुरुजी आपके टेस्ट लेते हैं, हम सबके टेस्ट लेते हैं. Do we keep the faith or do we go somewhere else? So it's a beautiful message for all of us. Keep the faith. We are in the right darbar. We are in the right place. पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, परमात्मा, हमारे परमात्मा हमारे गुरुजी हैं. हमें किस बात की चिंता? गुरुजी ने मुझे एक बात कही थी जो मुझे हमेशा मेरे साथ रहती है, which and it's so helpful in times of stress. गुरुजी says, तो चिंता क्यों कर दी है? एक बार मेरे बेटे के लिए कहा, तो चिंता क्यों करती है? तेरा बेटा बड़ा सियाना है. वो threw away. Once he told me,
हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। तो संगत जी, हम सबको गुरुजी मिल गए हैं, हमारी लाइफ में सब अच्छा ही होना है। बट दैट अच्छे की डेफिनेशन वी शुड एक्सेप्ट इज अकॉर्डिंग टू गुरुजी। वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। दीपिका जी, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग हियर? ये आप सही कह रहे हो। एक्चुअली मेरे बेटे का भी यही है। गुरु जी का ना एक वर्ड अगर उनके मुंह से निकला है ना, पत्थर की लकीर है ता जिंदगी, टिल वी डाई, मेरे बेटे को उन्होंने तब कहा था, सारा ही 6 साल का था, तो तब कहा था कि जिथे छाना है उत्थे हो जाना है। वो तब स्कूल, कॉलेज, मेन कॉलेज, सारा कुछ ना गुरुजी, मैं जब टेंशन होती हूँ उनके पास आती हूँ, जितने चाहना है उतने हो जाने, और उसका हो जाता है। टेंशन माँ को होती है ना कि यहाँ हो जाए बच्चे का, वहां हो जाए। हम तो टेंशन लेते हैं, लेकिन वो ना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, अभी समझ में नहीं आ रही, जितने छाने उतने जाने, टेंशन है। उसके बाद पता लगता है कि हाँ गुरुजी आप तो सुन ही रहे थे। तो ये चीजें बच्चों का उन्होंने देख लिया है। शायद हमें बुलाया है ना आंटी, हमारे को बुला के ना सब काट रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम आ गए हो ना, जितने कष्ट है अगले पिछले ना काटो, ताकि आगे सतयुग के जो बच्चे हैं ना, सतयुग तभी आएगा ना। कलयुग तो है, हम देख ही रहे हैं, और कलयुग देख रहे हैं, आने ही वाला इससे बुरा टाइम। कोविड जा चुका है, लेकिन आने वाला टाइम आगे बच्चे अपने बच्चों को करेंगे ना, तब सतयुग आना बहुत जरूरी है। इसलिए इतने सत्संग हो रहे हैं, इसलिए गुरु जी ने इतनी संगत बढ़ा ली, इतनी संगत बढ़ा ली। सारी संगत को सिर्फ विश्वास करना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली सब करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। आगे चलते हैं जी। आगे अनीता आंटी राइट्स, अ फ्यू वीक्स लेटर गुरुजी one day just said, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर दिता, I have cured your son. From that day the fever disappeared, my son's appetite improved, the lymph node was reduced and the matting disappeared. Thanks to Guruji, Daksh became all right. No medication whatsoever was given to him, as no conclusive diagnosis about his condition could ever be made. यहाँ संगत जी मुझे याद आ रहा है, ऑफ कोर्स जो मुझे याद आ रहा है, द सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, इट्स नॉट अ मेडिकल वन, बट लाइक गुरुजी ने जो कहा अनीता आंटी को, जा तेरे मुंडे नु मैं ठीक करता, सिमिलर टू दिस गुरुजी इन एम्पायर स्टेट told me, I'll first share with you the last sentence, then I will share the satsang. Guruji called me closer to him and said, जा मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है, ऐश करो। बट मैं उसके पहले बताती हूँ क्या हुआ। ये एम्पायर स्टेट की बात है, दिस इज अबाउट 2006 एंड माय डॉटर वाज कीन टू गेट मैरिड टू समबडी जिसकी जो हमें लगता था वुड नॉट बी अ राइट मैच फॉर हर, एंड वो द रीजंस वर कि अपब्रिंगिंग इतनी फर्क थी, इतने अलग अलग हाउस होल्ड्स में उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी दोनों की, दैट हमें लगा कि मे बी आफ्टर सम मंथ्स माय डॉटर विल रिग्रेट हर डिसीजन, and when she does that, it will be a suffering for her, for us, as well as for the boy's family, because us and them, we always felt कि जो रिश्ता होना चाहिए लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइजेस तो चाहिए ही दोनों तरफ से। बट सो कमिंग टू इट कि मुझे लगा, मेरे हस्बैंड मुझे दोनों को, कि शायद दिस इज नॉट द राइट थिंग, एंड हमने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, but she was in love naturally, she also respected us, and she said, mama, this is what I want, but अगर आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं करूंगी, आप जहां चाहते हैं करा दीजिए। देन हमने सोचा कि ऐसे कैसे हम कर दें, शी वॉज ग्रोन अप, शी वॉज ऑलरेडी 26 देन, तो हमने कहा हम जहां कर देंगे, शी इज नॉट हैप्पी, विल बी एवर बी हैप्पी इन लाइफ देन? नो। सो ये सारे जो ध्यान बातें थी हमारे दिलों में थी, बट गुरुजी से कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि क्या कहना है, हमने क्या बोलना है, वो भी गुरुजी कंट्रोल करते हैं। सो एक दिन जब गुरुजी को मत्था टेका, एम्पायर स्टेट में जब आए, सिर जब ऊपर किया, पता नहीं अपने आप मेरे मुंह से सिर्फ एक सेंटेंस निकला, मैं क्या गुरुजी मंदी नहीं, नो कॉन्टेक्स्ट गिवन, किस वजह से कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, बट इट जस्ट सेड,
कि I just said, "गुरुजी मंदी नहीं." And Guruji looked at me and he said, "तू मना कर दे." मैं क्या, मैं गुरुजी किस तर੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। अब मैं सोचूं कौन सी लॉटरी लग गई है, बट बिकॉज दे वर फाइनेंशियली फार सुपीरियर, गुड ह्यूमन बीइंग्स, एंड बट इतना सोचने का टाइम नहीं होता, बट थॉट जरूर आया। एंड देन मैं चुप हो गई, गुरुजी भी चुप, मैं भी चुप, और मैं वहीं बैठी हूँ, घुटनों के बल गुरुजी के सामने जैसे मत्था टेक के उठी थी। मे बी अबाउट अ मिनट पास्ट, एंड देन गुरुजी ने पीछे, मेरी बेटी पीछे थी, उसको इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा कि चल तू अपने साहब नू लेके आ। And so what we understood was that the boy she was interested in, and he said, देखो जब मैं अब सोचती हूँ, गुरुजी ने उसी वक्त कह दिया तू अपने साहब नू लेके आ, मीन्स उन्होंने तो पक्का कर दिया उसी वक्त। और फिर हम नेक्स्ट डे लेके गए, मेरे हस्बैंड तब बॉर्डर पोस्टिंग में थे, तब एक्टिव सर्विस में थे फौज में, और हम यहाँ थे। तो मैं अपने अंकित जी को और सुप्रिया मेरी बेटी और मैं अगले दिन हम गुरुजी के पास आए। जैसे दरबार में मत्था टेका, बैठे, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद, जाने के लिए जब आज्ञा लेने लगे, उस दिन गुरुजी ने हमें रोक के बिठा लिया, कहते हाले नहीं जाना, साइड में बिठा लिया। और थोड़ी देर के बाद गुरुजी अंदर गए कमरे में, कपड़े बदल के आए अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में, जैसे आते थे सत्संग के बाद जब संगत चली जाती थी, ट्राउजर्स और टी शर्ट, और आके नीचे कारपेट पर बैठ गए। फिर गुरुजी ने थोड़ी देर तो वहां जैसे दीवार के सहारे टेक लगा के बैठे रहे गुरुजी। फिर गुरुजी ने मेरी बेटी, हम उनके आसपास ही थे, वो मंगवाया, लंगर मंगवाया दोबारा एक प्लेट में, और हम तीनों को कहा खाने को। गुरुजी बैठे हैं और अपने सामने कहा ये खाओ, हमने वो खाया। फिर गुरुजी ने मेरी बेटी को इशारा किया, उन्होंने कहा चल तू मेरे मोढे दब, मतलब मेरे कंधों को दबाओ। तो बेटी, गुरुजी आगे हो गए, मेरी बेटी पीछे चली गई और अपने घुटनों के बल वो भी बैठ गई और गुरुजी के कंधे दबाने लगी। सो गुरुजी उसको कहते हैं, और गुरुजी ने अपने टांगे आगे कर दी, ही स्ट्रेच्ड हिज लेग्स, एंड उन्होंने इशारा किया मेरे जो अब मेरे सन इन लॉ हैं अंकित जी को इशारा किया कि चल तू मेरे पैर दब, मतलब आप मेरे पैर दबाइए। तो बेटी मेरी उनके कंधे दबा रही थी और अंकित जी उनके पांव दबा रहे थे। ऐसा आधे घंटे तक हुआ, और इस आधे घंटे में गुरुजी ने काफी बातें की मेरी बेटी से भी, और बेटी से बातें कर रहे हैं। पहले इसको कहते हैं तू फौजी दी बेटी है ना? हाँ जी गुरुजी। फिर जोर नाल दब ना, जोर नाल दबा मैनू। कहती गुरुजी आपका स्किन इतना सॉफ्ट है, मुझे डर लगता है कि कुछ हो ना जाए आपको। कहते गुरुजी मैनू कुछ नहीं होता, तू जोर नाल दब। और मेरे सन इन लॉ को कहते हैं, वो उनके पैर दबा रहे थे, और संगत जी उनको, उन्होंने इशारा किया अपने पैरों की तरफ और कहा देख रहे हैं किस तरह मेरे पैर काले हो रहे हैं। संगत जी वो दबा रहे थे, गुरुजी के पैर काले हो रहे थे। तो उस वक्त तो समझ नहीं आई क्या हो रहा था, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि गुरुजी किसी कष्ट में है, बिकॉज गुरुजी वॉज स्माइलिंग, ही वॉज टॉकिंग। बट टुडे आई नो व्हाट वाज हैपनिंग देन। गुरुजी को जो कष्ट आगे नजर आ रहा था, गुरुजी ने मेरा मान रखा, बहुत कल्याण किया, और वो जो भी कष्ट था वो हर लिया, अपने ऊपर ले लिया। उनके पैर काले हो रहे थे। आधे घंटे तक गुरुजी ने उनसे दबाया दोनों से, फिर गुरुजी उठ के बैठ गए, और फिर गुरुजी ने कड़ा प्रसाद वहां बात कुछ नहीं होती थी, गुरुजी के एक इशारे से सब समझ जाते थे। गुरुजी का इशारा उधर किचन की तरफ गया, और गरम गरम कड़ा प्रसाद एक स्टील की प्लेट में 3 चम्मच के साथ आ गया, और गुरुजी ने कहा खाओ। तो गुरुजी बैठे हैं और हम तीनों ने वो जब कड़ा प्रसाद खाया, उसके बाद गुरुजी ने इशारा करके मुझे बुलाया, मतलब नजदीक अपने, और जैसे सो दैट आई कैन हियर व्हाट ही इज सेइंग, एंड मुझे कहते हैं जा मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है, ऐश करो। तो संगत जी देखिए कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं, कैसे हमारा मान रखते हैं, कैसे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं फॉर लाइफ ऑलवेज। हिज ब्लेसिंग्स आर विद माय चिल्ड्रन, दे आर ब्लेस्ड, दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर।
सो कितना शुक्राना करें महाराज का। सो जब ये सेंटेंस था कि जा मैं तेरे मुंडे नु ठीक करता, I was reminded of what Guruji said, जा मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है, ऐश करो। बहुत बहुत सुंदर। दीपिका आंटी, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग हियर? जब आप बोल रहे थे ना तो मैं अमिता दी की बात याद कर रही थी। एक बार क्या हुआ, मैंने गुरु जी के ना चरण ना, एक बहुत भारी पाँव था उनका और एक बहुत पतला था। तो ना जो आंटी चरण दबा रही थी ना, उनके पैर सूज रहे थे। तो मैंने ना अमिता दी से पूछा, मैंने कहा अमिता दी ये क्या, गुरु जी का एक पैर तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है, दूसरा पैर इतना भारी क्यों है? गुरुजी एकदम से अंदर गए रूम में और बाहर आए, उनके दोनों पैर ठीक थे, नॉर्मल थे। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? कहती कल बताऊंगी। उन्होंने अगले दिन कहती है गुरुजी अगर किसी से पैर दबाते हैं तो जितने उसके कष्ट होते हैं ना अपने ऊपर लेते हैं। तो जब आप कह रहे थे ना कालक निकाली है, तो उन्होंने सारी उनकी लाइफ की जितनी कालक, जितनी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सारी अपने शरीर के थ्रू निकाल दी। ये वाली चीज है तो मैं वही याद करती हूँ। कहते हैं वो इसी, और वो ऑटोमेटिकली अंदर जाकर उन्होंने दोबारा अपने आप को एनर्जाइज किया होगा गुरुजी ने, क्योंकि वो शरीर में थे। अब तो उनको जरूरत ही नहीं है, डिवाइन फॉर्म में है, वो किसी को भी वैसे भी रेस्ट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है उनके पैर अब दबाने की, तब शरीर में थे। तो अब तो कल्याण वो ऐसे ही कर देते हैं। तो सारी कालक और डेस्टिनी चेंज कर दी थी आपके डॉटर की एंड उनके हस्बैंड की, दोनों की चेंजेस। तभी उसके कंधे दबा रहे थे और उससे कंधे दबा रहे थे ना अपने बैक साइड एंड वो, देखो ना पूरा शरीर दोनों ने मिल के दबाया है। तो वही है ना, तो उनकी गाड़ी गुरुजी तो चला रहे थे उस वक्त और आज तक चला रहे हैं। तो ये एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए भी और सारी संगत के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे पढ़ती हूँ जी। विद गुरु जी एवरी मोमेंट is a miracle and worth living for. He holds your hand and guides you gently. He carries your burden on himself without letting you know. He clears the path ahead and makes it soft and pleasant. He shields you from all evil, all wrong, and holds you close to his bosom like a mother would to protect her child. And when you go wrong, he gently prods you back to the right path. He listens to you, every breath that you take, and gives you the faith to believe in the goodness of God. And that is Him. Unassumingly, He watches over you and all other lives that even fleetingly touch you, blessing each one all the way. He has no heirs, no ego, He makes no demands. He is forever giving. He is unfathomable. Amongst the thousands that throng for His darshan, not a single one goes unblessed. Each one of us feels that he is with him only. He shows the correct way of conducting one's duties in this world. He suffers silently when we go astray and also when he takes the burden of our pain on himself. Believe me, there is no one like him. Never has been and never ever will be. I will repeat this sentence. इसको अपने अंदर धारण कर लीजिए संगत जी। Believe me, there is no one like him, never has been, and never ever will be. So true. कितना शुक्राना करें कि हमें परमात्मा के दर्शन हुए। परमात्मा हमारे गुरु हैं, हमें गाइड करते हैं एट एवरी स्टेप। एंड बहुत सुंदर आप अनीता आंटी ने यहाँ कहा है दैट ही साइलेंटली टेक्स ऑल द, हमारे जो कष्ट है, हमारी सफरिंग, ही टेक्स इट ऑन हिमसेल्फ साइलेंटली। बिल्कुल जैसे मैंने नरेट किया, दैट इज व्हाट हैपेंड। एंड देन ही ऑल्सो ब्लेसेस एवरीबडी जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं, हमारी पूरी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, एवरीबडी इज ब्लेस्ड बाय गुरुजी। दैट्स हिज इमेंस ग्रेस। सो एक मुझे यहाँ जो याद आ रहा है कि हाउ ही ब्लेसेस यू फॉर लाइफ, कि इन्हीं हमारी बेटी और सन इन लॉ का ही एक बार इस ये जो 2006 का एक्सपीरियंस था, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, उससे 2-3 साल पहले एक बार मैं गई थी वन ऑफ द बॉर्डर एरियाज इन कश्मीर, और वहां से मुझे बहुत दिल था कि मैं गुरुजी के लिए एक शॉल लेके जाऊं। डर भी था कि गुरुजी डांटेंगे, लेते कुछ नहीं थे, सबके सामने डांट लगा देंगे।
बट अंदर से जो फीलिंग थी टू टेक समथिंग फॉर हिम वाज स्ट्रॉन्गर देन दैट फियर. सो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, वहां जाके देखेंगे. सो आई टुक वन पश्मीना जेंट्स शॉल फॉर गुरुजी. और उसके बाद जब मैं दिल्ली आई और एम्पायर स्टेट में गई, एक पैकेट में थी. मैं कुछ नहीं बोली. जब मैंने मत्था टेका, मैंने वो दोनों हाथ से वो पैकेट गुरुजी को दिया, एंड आई जस्ट गेव इट टू हिम. सो ही लुक्ड एट मी. ही टुक दैट पैकेट. उन्होंने अपनी गोदी में उस पैकेट को रखा अगेन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. देन ही गेव इट बैक टू मी. मुझे कहते हैं कि मेरी तरफों कुड़ी दे व्याज दे दें. और मैंने कहा दिस वाज मे बी 2004. और कुड़ी का कोई ब्याह उस वक्त वाज नॉट प्लान्ड. कोर्स शी वाज ओल्ड इनफ. बट और मेरे को जो लगा कि गुरुजी, आई फेल्ट लिटिल हर्ट इनसाइड कि गुरुजी ने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया. मे बी गुरुजी किसी से कुछ नहीं लेते थे, पर कभी कभी संगत जी से, जैसे कोई बाहर जाते थे अब्रॉड, कोई शूज स्पेशली ही लाइक, और अगर कोई कुछ ले भी आता था, ही वुड टेक इट एंड देन कीप इट एंड गिव इट टू सम अदर संगत. किसी से लेके अपने आप उसको ब्लेस करके उस आइटम को किसी और संगत को दे देते थे जिसको ब्लेसिंग्स की जरूरत थी. बट ही नेवर केप्ट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ. बट यहाँ उन्होंने मुझे वापस कर दिया. तो मुझे ऐसी फीलिंग आई दैट मे बी आई एम नॉट एज गुड एज द अदर संगत. बट गुरुजी से कुछ पूछ तो सकते नहीं. तो वो शॉल लेके आई केम होम एंड आई केप्ट इट. एंड देन ऑफ कोर्स जब बेटी की शादी हुई गुरुजी की ब्लेसिंग से, 2007 में हुई थी जनवरी में, तो वो शॉल भी मैंने अपने सन इन लॉ के लिए दे दी, बिकॉज इट वाज अ जेंट्स शॉल. नाउ संगत जी, आप दैट वाज 2007 व्हेन आई गेव इट. आप आ जाइए अबाउट 2012 की बात है, या मुझे ईयर भूल जाता है, बट इट वाज आफ्टर डिमोनेटाइजेशन. मेरे जो सन इन लॉ हैं, इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस सेक्टर को बहुत लॉसेस हुए, बहुत प्रॉब्लम्स हुई. तो गुरुजी को सब पहले नजर आ रहा था. तो उन्होंने, मेरी बेटी और सन इन लॉ वर क्वाइट अपसेट. मैं उनको बार बार कहती थी कि गुरुजी है ना. बट संगत जी, द सफरिंग वाज इमेंस. और मुझे भी बहुत लगता था, बट मैं उनको नहीं शो करती थी. आई वुड ऑलवेज टेल देम, बेटे गुरुजी है ना, सब ठीक हो जाएगा. गुरुजी ने क्या कहा है, उन गुरुजी मिल गए, उन सब ठीक हो जाना है. और वो ठीक करेंगे, करते हैं, जब उनको पता है कि विच इज द राइट टाइम. So after some time, some months passed, Sangaji, about 2 years passed with this challenging time. और एक बार मैं गुरुजी के साथ थी, अपने बैठी थी मेरे कमरे में, जो महाराज का स्वरूप है, जैसे दीपिका आंटी बैठी हैं. आई वॉज देयर टॉकिंग टू हिम विद माई आईज क्लोज्ड, एंड आई सेड, गुरुजी हुन बख्श दो, मेहर करो बच्चियां ते, हुन बख्श दो. एंड मैंने गुरुजी की आवाज सुनी. उन्होंने मुझे एक लाइन कहा, वो शॉल किथे है. बस इतना उन्होंने कहा, और इन छोटे से 3-4 शब्दों में मुझे समझा दिया क्या करना है. तो मैंने बेटी को कहा कि ये गुरुजी के आदेश आया है. वो शॉल कहाँ है. कहती है, मम्मा ऊपर रखी है, वो तो पहनते नहीं, बिकॉज ही डजंट वेयर शॉल्स. आई सेड, नो, टेक इट आउट. वो 5 मिनट के लिए चाहे अपने ऊपर ओढ़े, वो आप करिए. उन्होंने, शी टुक दैट शॉल आउट, अंदर ऊपर वाले फ्लोर में कबर्ड में रखी थी. वो शॉल निकाली, और उन्होंने रोज थोड़ी देर अपना पहनना शुरू किया घर में. And after that, things started improving to the extent that, uh, मैं एक बार उनका जो बहुत ही क्रूशियल था, द कोर्ट केस बहुत ही क्रूशियल था. मेरे हस्बैंड उनके साथ हमेशा जाते थे, बिकॉज देन आई वाज स्टिल वर्किंग. एंड वो जाते थे जरूर इनके साथ फॉर द हियरिंग्स. उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा एक दिन पहले कि कल आप जाइए इनके साथ. I said I will be working at that time, and आप तो जाते ही हैं मॉरल सपोर्ट के लिए. यू बी विद देम. आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर देम. मेरे हस्बैंड ने क्या कहा, नहीं आप जाइए. जब आप जाती हैं गुरुजी आपके साथ जाते. नाउ हिज फेथ इन गुरुजी, इफ आई लुक एट इट ऑन अ डे टू डे बेसिस, इज नॉट व्हाट somebody would call that वो गुरुजी के भक्त हैं या गुरुजी के बारे में सोचते हैं. बट उनके मन का जो भाव था, वो आपके मेरे सामने आ गया. क्या कहा, when you go, Guruji goes with you.
सो मैं फिर अपने कमरे में आ गई और मैंने गुरुजी से स्वरूप से कहा, गुरुजी तुसी हुण सुन लिया ना की क्या इन्हां ने, कल असी चलना है, असी दोनों ने चलना है कल। सो नेक्स्ट डे आई वेंट विद देम, आई वो गुरुजी's ब्रेसलेट। और हमारे उनके पहले भी जो भी काफी जो 2-4 केसेस हुए, फिर जब उनका मेरे सन इन लॉ का नाम अनाउंस हुआ, आई टच्ड माय ब्रेसलेट, गुरुजी स्वरूप, एंड आई टोल्ड हिम, गुरुजी हुण तुसी खड़े हो जाओ, आई वांट द मैजिस्ट्रेट टू सी यू। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया, जो कहा मैजिस्ट्रेट ने, वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, हमारे फेवर में था और जो हमने चाहा था उससे ज्यादा दिया। शुक्राना गुरुजी। सो गुरुजी की टाइमिंग देखिए, शॉल कब मैंने दी, उन्होंने ब्लेस करके वापस दे के क्या कहा, कुड़ी दे ब्याज दे दी, और इतने साल बाद मुझे याद दिलाया, उसकी तब जरूरत आई, उनको पता था ना। तो गुरुजी को कौन समझ सकता है, समझने की जरूरत ही नहीं है, बस ये फेथ रखिए कि वो हमारे साथ हैं, एंड ही इज कंट्रोलिंग आवर लाइव्स एंड ब्लेसिंग आवर लाइफ, आई विल से। सो दूसरा एक और चीज आई वांट टू शेयर, जहां से यहाँ बोला है आंटी ने, अनीता आंटी ने, कि गुरुजी इज ही गाइड्स अस, वो हमें समझाते हैं कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है। एट एवरी स्टेप, जिस संगत से बात करिए सभी ये कहते हैं एवरी डे इज अ सत्संग। हर दिन हम लोग एक्सपीरियंसेस करते हैं गुरुजी की गाइडेंस, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और एक बात फिर मुझे यहाँ याद आ रही है, गुरुजी हमेशा कहते थे कि हर चीज कर्मों का एक खेल है, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए वो फिर भी नीचे रहेगा। दोज आर रिचुअल्स, वो शरीर के कर्म कांड हैं। जो मन से हम परमात्मा को ध्यान करते हैं और जो हम अच्छे कर्म करते हैं, उनका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। गुरुजी बार बार कह के गए हैं, सब कर्मादायी खेल है। तो संगत जी अपने कर्म अच्छे करिए, दूसरों का भला करिए, कभी ऐसा मत करिए जिससे दूसरों को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। और अगर अनजाने में ऐसा कुछ हो जाए, प्लीज से सॉरी, ईगो को मत आने दीजिए कितना भी, क्योंकि जितने हमारे नजदीकी रिश्ते होते हैं, हमारा ईगो बीच में आ जाता है, हम सॉरी कहने से हेजिटेट करते हैं, बट डोंट एवर डू दैट बिकॉज गुरु जी इज विद अस। सो हियर ऑल्सो आई वुड लाइक टू नरेट वन सत्संग, ये भी महासमाधि के बाद है। वन फैमिली मेंबर ने हमें याद कराया कि बहुत साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे उनको बहुत बहुत गुस्सा था, गिला था, बहुत ज्यादा गिला था। और वो बात हमें अब बता रहे थे, एंड दिस हैड हैपेंड विद माय चाइल्ड। जब मेरा बेटा बहुत ही छोटा था, तो उन्होंने जो कुछ कहा, हमने कहा कि वी डोंट नो बट वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट, एंड बट वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर हमने अपने बेटे से भी डिस्कस किया, and he accepted it, and he said today, after he says it was a childish prank. I Today when I look back, it was a childish prank, और मैं कभी भी ऐसा, कभी कैसे सोच भी कर सकता हूँ, और ऐसा हुआ तो I am absolutely sorry for it, and he apologized to them. बट फिर भी हमने अपोलोजाइज किया, उन्होंने अपोलोजाइज किया, बट वो बात को पकड़ के बैठ गए थे। कई बार some people are looking for an excuse to humiliate us, उनको एक मौका चाहिए हमारी बेइज्जती करने का या हमें नीचा दिखाने का। तो आई थिंक दैट वाज दैट टाइम, एंड बट वी हैड टू लिसन टू इट, हमने सुना। फिर मैं बहुत परेशान थी, एंड आई यूज्ड टू टॉक टू गुरुजी। एक बार मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी और गुरुजी से डायलॉग तो हमेशा चलता रहता है, तो गुरुजी की मुझे आवाज बहुत क्लियरली आई। गुरुजी सेड, माफी मंग लइए, माफी मंग लो, फिर उस तो बाद किसे कोलों नहीं डरना, मैं तुहाडे नाल हां। देखिए गुरुजी ने कहा, आप मांग चुके हैं माफी, एक बार फिर मांग लो, उसके बाद किसी से नहीं डरना, मैं तुम्हारे साथ। कि लोग अगर हमें दबा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, बट कोई बात किसी फैमिली मेंबर से अनजाने में हुई, जिसके लिए हम बहुत तहे दिल से माफी मांग रहे हैं, फिर भी वो नहीं मानते, तो गुरुजी से कोई गल नहीं, अब नेगेटिविटी को छोड़ो पीछे और आगे चलो, और मैं तुम्हारे साथ। बट द पॉइंट टू रिमेंबर इज, अगर हमसे कुछ गलती हुई है, वी हैव टू अपोलोजाइज,
and apologize to the person जिसके साथ ये कर्म कांड हमारा हुआ है। गुरुजी के आगे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। और गुरुजी कहते थे जब चोले में थे, मेरे कोलों माफी मंगन नाल कुछ नहीं होने लग्या, जिदे नाल तुहाडा कर्म कांड है वहां माफी मांगो, वो तुहानू माफ कर देंगे तो मैं माफ कर दियांगा। यहाँ देखिए उन्होंने नहीं माफ किया, बट गुरुजी रियलाइज दैट दे वर बीइंग एडमेंट। तो व्हाट डिड ही टेल मी, मुझे कैसे शांत किया, मैं तुहाडे नाल हां, किसे कोलों नहीं डरना। कितना सुंदर सत्संग है, कितना सुंदर एक्सपीरियंस है गुरुजी की ब्लेसिंग्स का। दीपिका आंटी, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग हियर? आपकी इस बात पे ना मेरे को भी ना सेम ऐसी, जैसे आप वॉक की बातें करते हो, मैं इवनिंग वॉक करती हूँ। कितनी बारी ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग कितनी बारी माफी मांगते हैं, दूसरा इंसान फिर भी एटीट्यूड के अंदर होता है। हाँ, हमारे नॉर्मली लाइफ के अंदर ये होता रहता है, हम थोड़ा सा हेवी हो जाते हैं। तो हम गुरुजी को जाके बोलते हैं, गुरुजी हम सॉरी बोल दिया है एक बारी दो बारी, लेकिन नहीं हो रहा है, चलो बड़े हैं बूढ़े हैं लेकिन। तो गुरुजी ने ना एक बारी मेरे को सेम चीज बोली थी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छड़नी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छड़नी। तो ना ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर माफी तुमने मांग ली है, तुमने अपना कर्म कर लिया, अगले ने नहीं दी दी जो मर्जी है, तुमने तो अपना कर्मा न्यूट्रलाइज कर लिया ना। आगे ओदी उसका आउटलुक है, वो तुम्हारे को माफ करे ना करे। तो ऑलवेज मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं झुकना कि दूसरा इंसान आपको ग्रांटेड ना ले। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर ना बात निकल के आती है ना। तो मैं आपकी सारी सत्संग सुन के हंसी रही थी कि मैंने कहा यार ये सब कुछ मेरे साथ भी होता है। ऐसे लगता है आंसर्स मिल रहे हैं सामने से, ये वाली चीज है। और गुरुजी कह रहे हैं हाँ ठीक है, जो मैं कई बार लगता है ना आवाज आती है तो वो गुरुजी कह रहे हैं या शायद हम खुद ही अनुमान लगा रहे हैं करके ना, कई बार नहीं इतनी क्लैरिटी होती। लेकिन हाँ, उस आवाज को मैं ये बोलूंगी अगर हम सुनते हैं ना, आई थिंक वो और लाउड और क्लियर होती रहती है। अब तो इतनी क्लियर होगी, अब तो डांट भी देते हैं सब। जैसे इस सत्संग के लिए बता रही हूँ मैं आपको, मैं सुरेश अंकल को बहुत मना कर रही थी कि मेरे से ना रीडिंग नहीं होती है, आप नरेटिंग कर लेना। मैंने कहा मैं वन लाइनर कर सकती हूँ, हंसी मजाक में बात कर सकती हूँ, गुरु जी का सत्संग में मजाक में सुना सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद उनका नोटी वाला बच्चा हूँ, अभी तक हूँ। तो मैं मना कर देती हूँ, गुरु जी मुझसे सेवा नहीं होगी। लेकिन उन्होंने इसी दिन मेरे को क्यों चूज किया, क्योंकि अमिता दीदी, क्योंकि वो शी स्टिल सो क्लोज टू माय हार्ट। अमिता दी के सत्संग की नरेशन तूने करनी है, क्योंकि तू तो लाइव है भैया, तूने तो देख रखा है उनको। तो शायद इसी वजह से शुक्राना है उनका कि उन्होंने मेरे को ला के खड़ा कर दिया कि तूने ही करना है। एंड थैंक यू सो मच आपका। आप आगे सत्संग सुनाएंगे ना? हाँ जी। हाँ जी, आगे है और थोड़ा सत्संग, एंड आई थिंक थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी बिकॉज टाइम को भी ध्यान में रखना है। सो आगे पढ़ती हूँ जी। My mother was hospitalized some years ago, and the doctors felt that her hemoglobin was very low and she would need a transfusion. We rushed to Guruji and shared our worries with him. He smiled and blessed her. The very next day, she was back home with all her tests normal. Here, I definitely want to share my satsang, my mother's. बहुत brief में बताऊंगी because I know time is a constraint. This is my mother left us last year. लास्ट ईयर जुलाई में मम्मी गए, जनवरी में माय मदर वाज हॉस्पिटलाइज्ड और आईसीयू में गए। मुझे सुबह मैसेज आया तो मैं ऑफ कोर्स गुरुजी का जल प्रसाद लेके गई। और मैंने जब आईसीयू में वैसे जा नहीं सकते, बट मैं सीधा गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में था, मैं सीधा अंदर चली गई एंड देयर वाज नोबडी अराउंड, नोबडी सेड एनीथिंग। आई क्विकली वेंट एंड आई टोल्ड माय मम्मी, मम्मा ये जल प्रसाद ले लो। एंड शी एग्रीड ऑफ कोर्स बिकॉज गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। सो मम्मी ने वो थोड़ा सा जल प्रसाद पी लिया और उसी के बाद इमीडिएटली द डॉक्टर्स केम बिकॉज उनके सुबह मम्मी जब एडमिट हुए थे सारे टेस्ट जो करने थे हुए। और व्हाट डिड ही कम एंड से, ही सेड कि आंटी ऑल द रिपोर्ट्स आर फाइन, 2 दिन तो अनु रखेंगे कमरे च, देन यू कैन गो होम। सो आई एम टोटली रिमाइंडेड ऑफ दिस कि गुरुजी ने उस वक्त ब्लेसिंग दे दी। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, गुरुजी gave her some months. Guruji gave me some months actually. He was preparing me. तो जनवरी में मम्मा घर आ गई। उसके बाद अबाउट
2 महीने बाद गुरुजी ने मुझे एक दर्शन दिए, ड्रीम के दर्शन थे, जो मैंने देखा ड्रीम में कि और मुझे जो फीलिंग होती है सिचुएशन की, किस जगह वो आप हैं, वो आपको आ जाती है। मुझे फीलिंग आई कि जैसे हमारे में हिंदुओं में होता है चौथा, प्रेयर सेरेमनी जिसे कहते हैं, वो है और वहाँ 4 कुर्सियाँ हैं जिस पे गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी अपने सफारी सूट में बैठे हैं और एक पाँव दूसरे के ऊपर लेके ऐसे बैठे हैं एंड ही इज स्माइलिंग एंड दैट वाज एंड सून आफ्टर दैट उसी ड्रीम में मुझे ऐसे लगा देन मैं किसी को कह रही हूँ कि गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी कहाँ ठहरे हैं, मुझे बताइए कहाँ ठहरे हुए हैं गुरुजी। तो उन्होंने मुझे बताया किस गेस्ट रूम में गुरुजी ठहरे हैं। सो मैं वहां जाती हूँ, तो मैं बाहर खड़ी हूँ उस हॉल में और गुरुजी अपने उस कमरे से चल के आ रहे हैं। ये ड्रीम कंटिन्यू हो रहा है, गुरुजी चल के आ रहे हैं और मैंने गुरुजी का चरण स्पर्श किया और मैंने कहा गुरुजी आप आ गए, मैंने तो आपको माथा ही नहीं टेका। एंड देन दैट वाज द एंड ऑफ द ड्रीम। बट मेरे माइंड में ये रहा कि अब गुरुजी क्या दिखा रहे हैं। My mother was old. My mother-in-law is still old, older than her. So I did not know क्या दिखा रहे हैं. And the other feeling that came to me was कि जब भी गुरुजी के दर्शन होते हैं, it's a blessing. So I thought कि शायद जो कष्ट आना है, गुरुजी ने टाल दिया. Because गुरुजी was smiling in that. And so बस मैं भूल भी गई उसके बारे में. And then he finally took my mother. He took my mother in July में ले गए थे. Difficult a little bit. बट यू नो दीपिका आंटी आपने जो बोला कि देर इज नो कोइंसिडेंस और जब गुरुजी का हुक्म होता है यू विल डू इट एंड जस्ट टू शेयर विद एवरीबडी टुडे आई एम नॉट इन दिल्ली इनफैक्ट आई एम इन अ डिफरेंट कंट्री बट जब ये सेवा आई आई टोल्ड सुरेश अंकल अंकल आई डोंट नो आई विल बी इन अ डिफरेंट कंट्री डिफरेंट टाइम जोन ऐसा ना हो मैं ये सेवा ना कर पाऊं सो आई वुड नॉट लाइक टू टेक इट लेट मी थिंक अबाउट इट एंड लेट यू नो 2 दिन बाद मैंने अंकल से कहा अंकल आई विल डू इट एंड व्हाट डिड आई थिंक व्हाट इज द डेट टुडे आपके यहाँ तो 29th नाइट है एंड 29th इज द फर्स्ट एनिवर्सरी माय मदर्स फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी एंड लुक एट द टाइटल ऑफ टुडेज ब्लेसिंग लाइक अ मदर he holds us close to his bosom. Is it a coincidence? No. आज का दिन चुनना ये वाली रीडिंग कराना is just his blessing. And आज तो मैं इमोशनल हो गई हूँ बट मम्मी के जाने के बाद बहुत महीने तक it was difficult for me to handle these emotions. I was missing her a lot. तो मैं बहुत इमोशनल आई वॉज डिफिकल्ट टू उनकी सेपरेशन को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था सो गुरुजी ने क्या किया उन्होंने probably रियलाइज कि आई हैव टू डू समथिंग बिकॉज शी इतने कमली हुंदी पई है शी इज जस्ट नॉट एबल टू हैंडल एवरीथिंग तो उन्होंने मुझे एक दिन वंस अ वीक आई गो टू जीके मंदिर तो वहां जब मैं गुरुजी को भोग लगा के बैठी आंख बंद करके बिल्कुल सामने बड़ा स्वरूप है गुरुजी का जहाँ गुरुजी स्टेप से नीचे उतर के आ रहे हैं सो मैं बैठी थी एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट गुरुजी जब मैंने अपनी आंख खोली तो गुरुजी ने मुझे मेरी माँ के दर्शन दिए उस स्वरूप में गुरुजी के चरणों में माय मदर इज देयर हर फेस एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर एंड व्हेन आई सॉ इट I thanked him. I became emotional, but I thanked him. और संगत जी उस दिन के बाद कोई आंसू नहीं आया आज थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ बट व्हाट आई एम सेइंग इज उस दिन के बाद वो सैडनेस चली गई ही शोड मी ही इज विद मी और अब मुझे याद आता है जो पहले उन्होंने ड्रीम दिखाया था कि वो बैठे हैं इट इज अ प्रेयर सेरेमनी लेने आए थे बट हंस रहे थे तो आए थे लेने लेके चले गए और फिर मुझे शांत करने के लिए दिखा दिया कि तेरी माँ मेरे कोल है एंड इट इज स्टिल एवरी टाइम आई गो it's captured in my phone I have it
her photograph is there. गुरुजी के चरणों में उनकी शक्ल है. So ये I just wanted to share that today this seva which Deepika aunty has got from Guruji and I have received is no coincidence. So Deepika aunty, would you want to say anything? आप सही कह रहे हो, ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है. इस तरीके से हमारा मिलना, एंड आप इतनी दूर हो, वी आर शेयरिंग द सेम काइंड ऑफ सत्संग, सारी चीजें सेम है, सारा कुछ है. कैसे गुरुजी दूर से मुझे लगता है गुरुजी ना एक माला लेके बैठे हुए हैं और वो मोती भी रो रहे हैं. इतनी दूर किस टाइम में मिलवाया गुरुजी ने, और अब वो ना सारे मोती भी रो रहे हैं. कह रहे सब मोती ना मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, एक एक करके सबको, जो जो संगत है ना. आई थिंक ही इज डूइंग इट दैट एवरी 7th जुलाई के बाद गुरुजी छटाई करते हैं, उसके बाद दोबारा से वो सारी चीजें ना अमिता दी से. उनका मैं बताती हूँ आपको, ये जो आगे आप पढ़ रहे हो, उनके अंकल का सत्संग आज या कल, जैसे आज आई एम रीडिंग, देयर हाँ इज जी. अनदर, हैं अभी 2-3 पेज हैं. आई बेटर, हाँ, हाँ है अभी आगे तो. आई मस्ट कंटिन्यू स्पीड कर अप. सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आप सुरेश अंकल से पूछ लो अगर आगे कंटिन्यू कौन सी डेट देंगे. जय आई गुरु डोंट जी माइंड. आंटी. जय गुरु जी आंटी. आंटी ये सेशन आज ही खत्म होना है. वी हैव टाइम. चलो फिर So ठीक है, and करो. and also Deepika aunty, आप अगर आप आज का जो था इनवाइट, उसमें हाँ जी. 8 to 9:30 लिखा था. गुरुजी को अच्छा पता अच्छा था फिर कि आज ये अच्छा फिर ठीक यादा है. सत्संग शेयर होने हैं. मुझे लगा 8 to 9 है शायद. हाँ, आप कंटिन्यू You करो, उनके अंकल का भी सत्संग है एक बहुत स्वीट सा. yes हाँ जी. okay. So आगे है, the next is the healer in white clothes. My maternal aunt Mausi, who has never been to Guruji, one day slipped into a deep coma and was admitted to the ICU. The doctor suspected brain hemorrhage as she had very high blood pressure. Guruji was not in Delhi at that time, and I prayed before Guruji's photograph for his blessings and cure. While her CT scan was taking place, Guruji's fragrance filled the CT scan room, and the CT scan report came normal. I left my Mausi still in a deep coma at night, but I was pleasantly surprised to see her sitting on her bed the next morning, very much conscious. She told me that the night before, a very fair person in white clothes had woken her up and had asked her to get up. I immediately knew that Guruji had blessed her. She is absolutely normal today, and we still do not know why she had slipped into a coma, as all her tests were normal. यहाँ पर भी मैं एक सत्संग जरूर शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज इट इज सो सिमिलर टू दिस. एंड जैसे कहते हैं ना, गुरुजी नॉट ओनली ब्लेसेस यू, योर फैमिली, बट जो आपके कांटेक्ट में लोग हैं. सो ये जो सत्संग है इज अबाउट प्रमोद. प्रमोद वर्क्स विद माय सन. He works with my daughter-in-law in her business, and he also उनका ड्राइविंग भी करते हैं. सो प्रमोद हमेशा मेरे साथ जाते थे जब हम बड़े मंदिर जाते थे महासमाधि के बाद. और वो भी अंदर हम दोनों जाते थे मत्था टेक के लंगर प्रसाद चाय प्रसाद लेने. तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे सब तक पहुंच जाती हैं, नाउ ब्रीफ में बताती हूँ. एक बार मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, ये भी 4 साल तो हो ही गए हैं, 4-5 साल. मुझे फोन किया, ही वॉज आउट ऑफ टाउन. ही सेड मम्मी, मुझे प्रमोद के बेटे का फोन आया है. प्रमोद इज वेरी सीरियस, ही इज इन हॉस्पिटल. आई सेड व्हाट हैज हैपेंड टू हिम. यंग मैन बिल्कुल हेल एंड हार्टी था. ही सेड मम्मी मुझे डिटेल्स नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट हियर, बट ही इज नॉट वेल. कैन यू प्लीज गो एंड लुक हिम अप. आई सेड मैं जरूर जाऊंगी. सो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उसके बेटे को फोन किया और पूछा. सो मैं बहुत कुछ लंबा नहीं बताऊंगी, बट व्हाट ही टोल्ड मी इज, हम पापा को फिर पहले एक हॉस्पिटल ले गए थे, वहां से अब सुबह हम उनको एम्स ले गए हैं. तो जब उन्होंने कहा कि हम एम्स ले गए हैं, तब मुझे बहुत शांति मिली. मैंने कहा गुरुजी ने वहां पहुंचा दिया एम्स में, बिकॉज दैट इज ब्लेस्ड बाय गुरुजी. तो मैं फिर गुरुजी के मेरे कमरे में जो स्वरूप के पास में जल प्रसाद होता है, बॉटल में मैंने डाला थोड़ा सा उसमें से, एंड आई टोल्ड हिम आई विल गो एंड सी योर फादर. पहले मैं अपने क्लास में गई बिकॉज आई डिडंट वांट टू लीव दैट, एंड गुरुजी ऑलवेज सेड अपने कर्म करो. आफ्टर दैट आई वेंट टू एम्स. और अंदर जब मैं गई जो इमरजेंसी में, पहले तो मेरा दिल दहल गया देख के कि जो सिचुएशन थी वहां.
और प्रमोद वॉज लाइंग ऑन अ स्ट्रेचर इन द कॉरिडोर। इतने लोग थे वहां कि उनको कोई प्रॉपर बेड नहीं मिला, वो स्ट्रेचर पे थे और इतनी ड्रिप्स लगी हुई थी। सो व्हाट आई डिड वाज, देयर वाज नोबडी अराउंड, द डॉक्टर वाज फार अवे। मैंने वो जल्दी से उनका सर थोड़ा सा ऊंचा किया, मैंने कहा प्रमोद आप ये जल प्रसाद ले लो। सो ही हैड अ फ्यू सिप्स और मैंने वो छोड़ दिया उधर। मैंने कहा ये आप पी लेना बाद में। ही कुड नॉट टॉक बट उसने आंखों के इशारे से बोला ओके। फिर मैंने डॉक्टर के पास पीछे जो उनका काउंटर था, मैं गई और पूछा उनके बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया दैट this is some liver issue which has come up. I said but he doesn't drink. तो उन्होंने बोला कि नहीं, it can happen but it suddenly happened and it is acute. तो I said कि ठीक तो हो जाएंगे ना? He said हाँ हो जाएंगे, शायद 6 महीने लग जाएंगे। और मैंने कहा यहाँ कब तक रखेंगे आप? उन्होंने कहा maybe about 2 weeks. So when I heard that अगर इमरजेंसी में इतनी देर वो रख रहे हैं, I knew it was serious. पर मैं वापस प्रमोद के पास आई, मैंने उससे कहा कि वो कह रहे हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं। I did not want to unnerve him, but in my heart I prayed to Guruji. I said, Guruji, he needs your blessings. और फिर मैं आ गई बिकॉज ज्यादा देर रुक नहीं सकते। So what I'm going to share with you now is, उन्होंने कहा था 15 दिन रखेंगे। अगले दिन प्रमोद अपने घर चले गए, वहां से डिस्चार्ज हो गया। वो डिटेल्स मैं नहीं दूंगी, बट जो मुझे 3 दिन बाद प्रमोद का फोन आया और प्रमोद ने कहा, ही कॉल्स मी दीदी, ही सेड दीदी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सो मैंने कहा बोलो। कहते हैं दीदी जिस दिन आप आए थे उस दिन गुरुजी आए थे। मैंने कहा गुरुजी आए थे? कहते हाँ, जैसे अब जब आप डॉक्टर के पास गए थे, सो कोई आए थे बहुत गोरे और उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा पहना था। सो सेम थिंग आई एम रिमाइंडेड बिकॉज अनीता आंटी ने कहा है दैट समवन केम इन व्हाइट क्लोथ्स। तो व्हाइट कहते हैं सफेद कुर्ता पजामा पहन के वो आए थे और गुरुजी की तरह लगते थे। और मुझे कहते उन्होंने मुझे हाथ लगाया और मुझे कहते हैं तेनू नहीं, तू ठीक है, कुछ नहीं होया तेनू। और फिर कहते हैं आप पीछे गए थे डॉक्टर्स के पास तो उन्होंने आपकी तरफ देखा और मुझसे पूछते हैं ओ कौन सी? कहते मैंने उनसे कहा मैं इनके लिए काम करता हूँ। कहते चंगा चंगा फिर। और कहते वो चले गए। फिर मैंने मतलब इशारे से आसपास से पूछा जो बाकी बेड्स पे थे कि कौन है। सबने बोला कि वो नहीं जानते कौन है। बट संगत जी, आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस विल हैव अ डाउट कौन आए थे। द डॉक्टर्स इन एम्स आर सेइंग 2 हफ्ते इमरजेंसी में रखेंगे, 6 महीने ठीक होने में लगेंगे। नेक्स्ट डे ही वाज डिस्चार्ज्ड, हिज रिपोर्ट्स केम ऑल फाइन एंड ही वेंट होम। और 1 हफ्ते बाद उन्होंने काम भी रिज्यूम कर दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। So I will continue on unless Deepika aunty you want to say something. Okay. So then I will say, where was I? Yeah. Okay. Guruji returned from Jalandhar about 3 months later, and as soon as I bent down to touch his feet, he remarked, "Mausi ko bhi theek kar diya. You've got your Mausi cured by me as well." I will repeat what Guruji said because I made a mistake. Guruji, मौसी को भी ठीक करा लिया, मौसी को भी ठीक करा लिया। गुरुजी कितनी बार कहते थे ना, ब्लेसिंग्स करा गई, कल्याण करा गई। सो आई एम रिमाइंडेड ऑफ दैट। आई वाज सरप्राइज्ड, he was not even here and nobody knew about my Mausi's illness, but then he knows everything. I should have realized this. It is amazing how Guruji keeps an eye on you wherever you go, whether in this country or abroad. Time and distance do not exist. He's beyond time and beyond the realms of space. मुझे कुछ I cannot help myself but share. अभी देखिए, when I was in the flight, जब मैं यहाँ आ रही थी, दिल्ली से ही मेरी फ्लाइट डिले हो गई थोड़ी, 1 घंटा वहां से लेट हो गई। सो मैं आई वॉज अ लिटिल वरिड बिकॉज जो मेरा कनेक्शन था वो सिर्फ 1.5 घंटे का था, गैप था। और दोज एयरपोर्ट्स एट फ्रैंकफर्ट आर सो वास्ट कि एक से दूसरे जगह जाने में आपको टाइम लगता है और अगर आप लेट हो जाएं तो वो आपको बिल्कुल नहीं अंदर आने देते। सो आई वॉज वरिड एंड
But I said, Guruji, तो अब वो बहुत, with every passing year, गुरुजी ने इतना स्ट्रांग बना दिया है कि वो चिंता नहीं होती भी है तो मोमेंटरी होती है। एंड देन आई सेड, गुरुजी आप हो ना, कुछ भी हो जाएगा, मिस हो जाएगी, यू विल टेक केयर ऑफ मी, यू विल हैंडल एवरीथिंग। और फिर मैं सो गई, और मुझे ड्रीम में बहुत ब्रीफ दर्शन हुए, बट संगत जी इतने सुंदर दर्शन हुए, बिकॉज दिस सेंटेंस जो है, दैट गुरुजी कीप्स एन आई ऑन यू वेर एवर यू गो, वेदर इन दिस कंट्री और अब्रॉड। और एयरक्राफ्ट में मुझे क्या दर्शन हुए, मुझे जो फीलिंग हुई वॉज कि दिस इज हेवन, सचखंड की फीलिंग हुई। और वहां मेरे को दिखाया एक गोल्डन चेयर है, गोल्डन आसन है, और उस गोल्डन आसन के ऊपर एक त्रिशूल है। गुरुजी की शक्ल नजर नहीं आ रही, शिव जी की शक्ल नजर नहीं आ रही, सिर्फ गोल्डन आसन और उसके ऊपर त्रिशूल है, और फीलिंग है कि सचखंड है ये। और उसके बाद क्या विजन दिखाते हैं कि मेरे एयरक्राफ्ट में जो बैठी हूँ, जितने पैसेंजर्स हैं, सब सोए हुए हैं, सबके मतलब सर किसी का इधर है, किसी का उधर है, आंखें बंद हैं, और पूरी आइल की तरफ घुमा रहे हैं, और सब पैसेंजर्स की शक्लें मुझे दिख रही हैं, और हर पैसेंजर के फेस के ऊपर गुरुजी की शक्ल है। सो दैट वाज द ड्रीम, वेरी ड्रीम, मतलब ये दर्शन थे, इट वाज ब्यूटीफुल दर्शन। फिर जब हम लैंड किए, लैंड करते ही मैं भागी उधर काउंटर पे जाने के लिए, कनेक्टिंग फ्लाइट। तो पहले मैंने चार्ट देखा, उस चार्ट में क्या था, जो मेरा कनेक्शन था वो 2.5 घंटे आगे हो गई थी, वो भी डिले हो गई थी। सो गुरुजी ने क्या ब्लेस किया कि आई आई एम विद यू, आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। और फिर उसके बाद संगत जी, जब मैं एयरक्राफ्ट में जाके बैठी, वी ऑल, जो टाइम उन्होंने बताया था हम सब जाके बैठ के, बट एयरक्राफ्ट में 3 घंटे हम बैठे रहे, और बार बार अनाउंसमेंट वो कर रहे थे कि देर इज सम प्रॉब्लम, वी आर चेकिंग ऑन इट, व्हेन वी आर सेटिस्फाइड वी विल टेक ऑफ, प्लीज बेयर विद अस, थैंक यू फॉर। 3 घंटे ऐसा चला। तो मेरे मन में फीलिंग आ रही थी, बिकॉज नरिंदर अंकल का भी सत्संग अभी रिसेंटली सुना है, कि जब वो उन्होंने अहमदाबाद जाना था, तो गुरुजी ने, मतलब फ्लाइट डिले हो गई, एंड देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द एयरक्राफ्ट, और गुरुजी ने नरिंदर अंकल को क्या कहा, आज जो था ये फेटल था, तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। पर मैंने सिर्फ मैं चाहता तो सब कुछ ठीक कर सकता था, इंजन भी खराब नहीं होना था, बट कर्म तो काटने हैं ना। तो थोड़े से में मैंने तुम्हारे कर्म काटे। उनकी फ्लाइट मेरे ख्याल 5-6 घंटे डिले हुई थी, मेरी फ्लाइट पहले चल आने से पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटे, और फिर ये जो 3 घंटे एयरक्राफ्ट में बिठा के रखा। सो गुरुजी याद करा देते हैं, डोंट वरी, आई एम लुकिंग आफ्टर। सो ओनली आफ्टर दैट द प्लेन टुक ऑफ एंड एवरीथिंग वाज फाइन। और जो दर्शन दे दिए पहले एयरक्राफ्ट में ही, कुछ तो मतलब होगा उसका। कितनी सुंदर ब्लेसिंग्स है। सो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, एंड आई एम गोइंग टू रश फॉरवर्ड। So I'll continue. Some years ago, I took ill and was admitted to a hospital with fever, backache, and breathlessness. I was put on injectables, inhalers, and oxygen, but I continued to suffer. It was a Friday when the consultant decided to do a CT scan of my chest. The radiologist saw the scan. He remarked that it was not a normal scan, and whatever it was had spread to most of my lungs. I would need further evaluation. I was alone in the hospital that day, and the only person I could turn to and knew who would look after me was Guruji. I prayed to him the whole day. In the evening, I went to Guruji, and out of the blue, he turned to me and asked me how I was. I told him I was admitted to a hospital and had difficulty in breathing, and that every night since Monday, I had been so sick that the ICU doctors had been called out. I also told him that the CT scan of my lungs was bad and prayed that he cure me. He smiled benevolently and said that he had cured me and I was fine. I couldn't hold back my tears. In a fraction of a second, he had removed all my problems. That night, I felt so relieved
that I slept without any medication. I had not slept for the last 4 or 5 nights. The doctors came to check and found me sleeping without any oxygen support. They went back surprised. How in this world would they know that the highest power in the world was at work? The next morning, I requested a discharge and came home. I'm feeling fine since that day, 3 years ago, and have not undergone any tests. Sangaji, I'm going to highlight one sentence here. How would they know that the highest power in the world was at work? And Guruji क्या कहते थे? Guru की होता है? God on duty is Guru. So through the Guru, God's wish is done. His blessings are brought to us through the Guru. So how would they know that the highest power in the world was at work? And so some time ago, Deepika aunty, I now come to something that you have been waiting for. Some time ago, my husband, also a doctor, had been experiencing some early morning discomfort for almost a week. An ECG detected changes, and we thought of admitting him, but my husband refused and came back home. He said he would rather go to Guruji and take his permission for getting admitted. I took him to another cardiologist early next morning, and even he suggested further evaluation at the earliest, as changes in the ECG were clear and substantial. We panicked and decided to go to see Guruji right away, knowing very well that it would not be possible to meet him at this hour. We were amazed to find ourselves in front of him. He looked at us and said, "So you have come to get Arun cured? Arun ko theek karane aaye ho?" I was overwhelmed and told him all that had happened. With a wave of his hand and a reassuring look, he said that it was nothing and that Arun would be fine. He asked Arun to go back to the office and resume work instead of going to the hospital. Guruji also prescribed 2 pegs of whiskey and a wheatgrass extract daily. A few weeks later, Guruji told Arun that he had cured his heart, else doctors would have had to operate upon it. With Guruji's blessings, Arun is fine today. We are so thankful to Guruji for blessing us and giving us this happy family. We pray that he watches over us forever. Yes, Deepika aunty, आप शेयर करिए. मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, अरुण भैया ने जब ये सत्संग सुनाया था ना, तो उन्होंने ये कहा था कि गुरुजी ने ऐसे बोला था कि मेरे को जब भी आएगा ना, 2 पैग ला के आया कर. तो ये वाला सत्संग ना, पता है क्या आंटी, हर किसी के लिए नहीं है कि भाई ये मत करना. इट वॉज फॉर हिम, उनके लिए था, अंकल के लिए. क्योंकि ये वाला सत्संग ना मैंने भी नहीं किसी को सुनाया, क्योंकि रैंडमली ना संगत ना हर किसी के सत्संग को ना अपने ऊपर ले जाती है. गुरुजी ने उनको कहा था तो ये हमारे लिए भी है, ऐसा नहीं होता. तो ये वाली ना स्पेसिफिकली फॉर अंकल था. और यस ऑफ कोर्स गुरुजी ने उनके बेटे के लिए कहा था कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना. जैसे उनके बेटे के उन्होंने सारे टेस्ट कराए थे. अभी जो पहले आपने बोला, तो उन्होंने पूछा था कि गुरुजी मैं अपने बेटे के लिए आगे टेस्ट कराऊं. उन्होंने कहा डॉक्टर को अपना काम करने दो, तू भी तो डॉक्टर है, ये कहा था. तो अगर उनके बेटे के लिए सारे प्रोज एंड कॉन्स हुए थे, उसके बाद भी ब्लेस हुआ है उनका बेटा. यहाँ अरुण अंकल को कह दिया था कि नहीं, कुछ कराने दी लोड नहीं है, कि जाके ऑफिस जाओ और 2 पैग लाके मेरे को ला. तो उनका वो तरीका आएगा उनको ब्लेस करने का. तो हम लोग ना रिलेट नहीं कर सकते. ये जरूर है, सत्संग सुन के सिर्फ हम ये रिलेट कर सकते हैं कि हम विश्वास करें. अगर अगला कर रहा है विश्वास, तो हम वो लेवल का विश्वास लेकर आए. दूसरे का सत्संग हमारे लिए, इसका मतलब ये नहीं है, सारी संगत को मैं बार बार बोलूंगी, ये नहीं है कि सारे आप ही 2-2 पैग लगा के जाओ गुरुजी के पास. नो, इट वाज ओनली फॉर हिम. और अगर आप लोगों को किसी को, है ना, यही मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल, मतलब, बिल्कुल. हाँ जी, बहुत सारे लोग ले लेते हैं ना आंटी की गुरुजी. तो मैंने खुद सुना हुआ है, सबने कहा था गुरुजी तो कुछ नहीं कहते थे, गुरुजी तो कहते थे कि ला लिया करो. नहीं, क्योंकि एक डीजे अंकल का था ना, कदे कदार पी लिया कर. या गुरुजी ने कहा था आज विस्की प्रसाद हैगा,
उन अंकल का मैं जानती हूँ, उनको गुड़गांव के अंदर है परीक्षित अंकल। तो उनके घर पे आके उन्होंने बॉटल खोल के गुरुजी ने कहा था आज विस्की प्रसाद है। बट ये हम लोग ऐसे नहीं कर सकते ना। उनका सत्संग है, उनका सत्संग सुन के कि हाँ ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि ले लिया करो, बट नॉट लाइक दैट। इट वाज नॉट फॉर एवरीबॉडी के हर किसी के लिए नहीं है ये कि 2 पैक लगा के मेरे पास आओ। डू नॉट टेक इट दैट फेस। तो मेरे को यही इसी सत्संग के ऊपर आगे ये जरूर कमेंट करना था कि प्लीज डू नॉट टेक इट ऑन योरसेल्फ। जय गुरु जी। हाँ जी। यस, एंड गुरुजी भ्रम दूर करते हैं। एंड गुरुजी को समझना मुश्किल है। गुरुजी की कल्याण करने के तरीके बहुत हैं, हर एक के लिए अलग हैं, और जो स्पेसिफिक चीजें हैं दे आर ओनली मेंट फॉर दैट संगत, इट्स नॉट फॉर जनरल। तो चलो आगे चलते हैं। Yeah, it is. His blessings extended to my sister as well. She fell sick, and the pathologist indicated a diagnosis of some kind of lymphoma. But Guruji blessed her, and she had nothing and would be fine. Sorry, but Guruji blessed her and said she had nothing and would be fine. The next morning, there was a call from the lab. They said there was some confusion regarding the samples. My sister was fine, but it was not just my family that was blessed. My neighbor, Mr. Sethi, was diagnosed with acute pancreatitis and had been admitted to the ICU. The doctors had very little hope of his recovery. Guruji blessed him, and today the man is back to work. In a matter of days, Mr. Sethi's critical condition turned normal thanks to Guruji. The doctors say that Sethi is very lucky, but we know that he is very blessed. बिल्कुल सही है। और बहुत मेरे को भी मेरे फादर इन लॉ के मदर के इतने सत्संग याद आ रहे हैं कि कैसे गुरुजी ने जो जिसे कहते हैं ना न्यू लाइफ, और बहुत बड़े बड़े कष्ट टाल दिए। बट मैं आज इलेबोरेट नहीं करूंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि गुरुजी इज वॉचिंग एवरीथिंग। उनको सब पता है आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके परिवार के जीवन में क्या हो रहा है, एंड ही इज टेकिंग केयर एंड ही इज ब्लेसिंग। आगे आई कंटिन्यू टू रीड। Once Guruji visited a hospital ICU where a young man, Man Singh, was suffering from brain fever, cerebral malaria. He was on the respirator and undergoing dialysis as well. The doctors had lost hope of his recovery. Man Singh's brother came to Guruji with his photograph, and Guruji recognized him. Though nobody had told Guruji anything about Man Singh, Guruji blessed Man Singh. Within the next 2 weeks, he was discharged and is now healthy and back at home. The family, which have got back a member of their own from the dangerous disease, keep thanking Guruji ceaselessly. तो फिर से मैं आपको प्रमोद जी का सत्संग कहती हूँ कि ये जो जीवन दान उनको और ये क्रिटिकल डिजीज से उनको बचाया महाराज ने, पूरी फैमिली गुरुजी की संगत है। और इतने प्यार से, इतने भाव से गुरुजी का सत्संग अपने घर में करते हैं, अपने नेबर्स को बुलाते हैं, तो गुरुजी की संगत बढ़ा रहे हैं। गुरुजी क्या चाहते थे? लाओ मेरे को नवी संगत ले आओ। क्यों चाहते थे नवी संगत ले आओ? उनको अपना प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि मैं जितने से जितने ज्यादा लोगों को ब्लेस कर सकूं, क्योंकि उनके थ्रू फिर आगे ब्लेसिंग्स जाएंगी। सो गुरुजी इज एब्सोल्युटली, I mean, amazing. He's so magnanimous. And now, at the last paragraph, I will read. With you since beyond time. Anita Auntie writes, my twin sons would constantly squabble about who was elder. One day, Guruji cleared their doubts by pointing out that one was elder to the other by 6 minutes. I was amazed to hear this, as due to a complication during their birth, the doctors could not note down the time of birth, and the second twin, the doctor could not note down the time of birth of the second twin. I wondered how he knew this. He suddenly turned and answered that he was the one who had blessed me with these sons, and so he knew. And that was before I had gone to him, before I knew him as Guruji, before I had felt his presence in my life. Obviously, he had known me since way beyond and had been keeping timeless watch. Unsurprisingly then, every single day at Guruji
Guruji's darbar is filled with miracles. I thank Guruji for being there for us now and always. I thank Guruji for being there for us now and always. And I say this on behalf not only of Anita auntie, but all of us, all the Sangat. So बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. You are beyond time. इस जीवन में हम कब जुड़े हैं हमें पता है, बट कब से आप हमें ब्लेस कर रहे हैं, दैट ओनली यू नो. तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आज की सेवा देने के लिए. ये इतनी सुंदर रीडिंग, एंड इस रीडिंग के थ्रू एंड द इंटरेक्शन विद दीपिका आंटी, सच इतने सुंदर सत्संग और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सब के लिए आई हैं. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. शुक्राना महाराज, शुक्राना जी. सुरेश अंकल जी. जय गुरु जी महाराज. मैं दीपिका आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द के लिए. मैं सिर्फ अमिता आंटी के बारे में, जिनका सत्संग आज सुना है ना, उनके बारे में एक ही बात बोलूंगी. वो ना बहुत अपने ना स्टर्न थी, कायदा था उनको, गुरु की सेवा करना, गुरु के पास खड़े होना, स्माइलिंग फेस हमेशा. डांटती बहुत थी, मैं सच कह रही हूँ, बहुत डांटती थी मेरे को, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे. लेकिन मैं कहती थी अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. लेकिन वो ना गुरुजी अगर डांटते भी ना मुस्कुराती रहती थी. वो ना इतनी ज्यादा, मतलब आई थिंक शी इज नॉट देयर, बट शी वॉज अ ब्लेस्ड संगत. गुरुजी ने इतना दिया है ना. गुड़िया दीदी, उनकी सिस्टर का सत्संग आपने सुना है, उनको लाइव, हर इंसान को लाइव दिया. और उनके दोनों बच्चे दक्ष और ध्रुव 4 साल के थे तब गुरुजी ने उनको 7 साल दिए. 10th का बोर्ड पूरा करने के बाद गुरुजी ने उनको ना मुक्ति दी. 2008 के अंदर 10th के बोर्ड, दक्ष और ध्रुव दोनों के दोनों ने इंजीनियरिंग के अंदर ले लिया था एडमिशन. उसके बाद उनकी डेथ हुई है. उनके घर के अंदर ना गुरुजी की पुरानी वाली चेयर थी जो एम्पायर स्टेट से उनको मिली थी. हम घंटों बैठे रहते थे उस चेयर के आगे. उन्होंने दिखाया मेजेंटा कलर का चोला और गुरुजी के चरण. वो तो गुरुजी ने उनको ब्लेस पहले ही दे दिया था, हो सकता है शायद लाइफ नहीं थी ना. तो मैं संगत को सिर्फ इतना ही एक बताऊंगी कि थोड़ा ना एक नियम होता है ना गुरु के आगे, एक कायदा होता है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए. और गुरु के आगे उनके सत्संग, यही बात बोलूंगी बार बार. हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आने वाले लोगों को, संगत को जोड़ने के लिए, बताने के लिए कि भगवान खुद आया है नीचे गुरु के फॉर्म में दर्शन देने के लिए. तो एटलीस्ट थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए इसको ना. एक मतलब एक वो मत बनाइए, जैसे हम लोग एक दिखावा हो जाता है ना, वो मत बनाइए. आई वाज रिक्वेस्ट. थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू सो मच. आज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आज का दिन क्यों चूज किया था. ये गुरुजी ने किया था. डांट के मुझे अमिता दी, जब नाम मैंने देखा ना, मैंने कहा ओ बाप रे, ये तो डॉक्टर अमिता है, डॉक्टर अनीता नहीं है ये. तब मेरे दिमाग में, जब मैंने उनका सत्संग पढ़ा ना अंकल, मेरा दिल दिमाग गोल गोल घूमता रहा. और कल ही मैं इनको याद कर थी कि अमिता दी आपके सत्संग भी तो लाइट ऑफ डिविनिटी के अंदर है, कहाँ है? मैंने तो बड़े नहीं आपके मुंह से ही सुने हैं. और देखो उन्हीं का सत्संग नरेश्वर आंटी के थ्रू, और मैं साथ के साथ, मतलब ये सब गुरुजी का है. ये वो ऐसे करते हैं और कठपुतलियों की तरह हमें नचाते हैं. एंड थैंक ये यू, सब शुक्राना, कम से कम इस लायक समझा है उन्होंने. थैंक यू ये ये सब गुरु जी का माया जाल है. एवरीथिंग वाज destined फॉर टुडे. बहुत ही भाव से आपने आज रीडिंग की है तनुज आंटी. अंकल, थैंक यू. गुरुजी का शुक्राना, मतलब वर्ड्स आर नॉट इनफ टू डू शुक्राना, बट जो भाव अंदर आते हैं. एंड अंकल, आई विल अपोलोजाइज कि यस टाइम ज्यादा लिया, पर क्या करें अंकल, लंबे सत्संग थे. और इन आंटी के सत्संग के साथ हमारे कितने एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, उनका भी तो आज ही शुक्राना करना है ना. गुरुजी ने सेवा इसीलिए दी है, तो वो सब भी लिंक थे. और उन्हीं के तनुज आंटी, थ्रू. यस तनुज अंकल. आंटी, the seva has been assigned depending upon the pages. अभी तो ढाण अंकल के जो संगे शेयरिंग है बहुत लंबे पेजेस हैं, उसमें दो घंटे में जाएंगे. Yeah. तो दिस इज द डिवाइन प्रोजेक्ट.
let us all contribute towards this, toward accomplishing this. बहुत ही भाव से आपने रीडिंग सेवा की है। थैंक्स अ लॉट दीपिका आंटी, समय देने के लिए। अभी हम सब गुरुजी महाराज से आगे लेंगे।